students, now we are doing chapter 7, class 10. So we have already studied what is distance formula. Now we will do 3 applications based on distance formula. First, we will check whether the given 3 points are collinear or not. If they are not collinear, in case they are forming a triangle, then what is the type of triangle? And the third one is if we are given with 4 points, then whether they are forming any quadrilateral. And if they are forming any quadrilateral, then we will check the type of quadrilateral. So first concept is collinear points. अब आपको कैसे पता चलेगा कि 3 points collinear हैं या नहीं? In that case, let's say there are 3 points P, Q, R. Okay, we will find the distance between P and Q. Then we will find the distance between Q and R. And when we add these two distances, P, Q and QR, if the sum of two distances is equal to the third one, PR, in that case, these 3 points are collinear. And just in case, if the distance between sum of distances between the 2 points is not equal to the third one, in that case, those points are not collinear. So let's check. We are given with 3 points A, which is 2, 3. So whenever you start the question, firstly write the numerics from the paper. So I'm just writing A 2, 3, then B 4, 0, and then C it is 6, -3. Just cross check whether you have taken the right values or not. Now the second step, we have to find the distances. So we use distance formula, and if we have to use any formula, we will write that formula at least once in the whole question. So we will find distance. Okay, we will find distances. कौन से distance हमें निकालने हैं यहाँ पे? A, B and then B, C and then AC. Okay, 3 distances हम निकालेंगे. तो distance formula निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let's write the formula. So distance formula is AB, distance formula जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे. This is equal to x2. Yes, काफी सारे बच्चे मुझसे पहले बोल रहे हैं. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. क्लियर? अब हम तीनों पॉइंट्स जो हैं उनको पेयर में लेंगे और तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे. सो वी नीड नॉट टू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, वी विल राइट इट वंस इन अ क्वेश्चन. नाउ लेट्स फाइंड AB. अब देखिए AB निकालने के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आई वुड लाइक टू गो डायरेक्टली, बट जस्ट इन केस if you think you are not that much comfortable, so you can write A, which is 2, 3 here. X1 is equal to 2 and ordinate of the point A is y1, which is 3. And again point B, its coordinates are 4, 0. So इसका जो coordinate abscissa and ordinate है second point का x2 which is 4 and y2 it is 0. बट हर क्वेश्चन में अगर हम इतना प्रेजेंटेशन करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप एक बार इस प्रेजेंटेशन को करेंगे, उसके बाद प्लीज मेक योर ग्रास्प. अब देखिए हम क्या करेंगे, x2 minus x1. सो b का जो एब्सिसा है दैट माइनस एब्सिसा ऑफ a. जनरली हम क्या करेंगे, जो a और b हम पेयर ले रहे हैं, तो जो b पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम x2 y2 लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम पहले लिखेंगे. एंड माइनस x1 माइनस y1 जो हमारा यूज हुआ है वो अल्फाबेट ए हमने पहले लिखा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लेटर लेंगे विद नेगेटिव साइन. सो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज. सो x2 मींस 4, x1 is 2 whole square plus y2 हमारा क्या है, b का ऑर्डिनेट विच इज 0 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ a विच इज 3. ठीक है जी. अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 minus 2 2 स्क्वायर प्लस 0 minus 3 होता है, तो -3 का होल स्क्वायर एंड हियर विल बी अ रूट. सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. अब चाहिए 3 स्क्वायर है या -3 स्क्वायर है, आंसर विल रिमेन दी सेम, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर सेम नंबर अगर हमारा होता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है इट इज इवन पावर, इट विल बिकम पॉजिटिव. सो 9 plus 4 दिस इज 13 within the root units. ये जो मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखा है, एक्चुअली डिस्टेंस जो होता है इट हैज सम यूनिट, मे बी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे यूनिट्स हमारे हो सकते हैं, बट वी आर नॉट गिवन विद एनी ऑफ द यूनिट, सो आई विल जस्ट राइट द वर्ड यूनिट हियर. अगेन वी विल फाइंड द सेकंड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड BC. अभी जो BC मैं ले रही हूँ, तो B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम x1 y1 ट्रीट करेंगे, और जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम x2 y2 ट्रीट करेंगे. So I'm not writing the formula again and again. If you are not comfortable, then you have to. Like, देखिए C के जो कोऑर्डिनेट है एब्सिसा 6 एंड ऑर्डिनेट B का एब्सिसा 4.
तो 6 minus 4 whole square plus ordinate of C minus ordinate of B, it is minus 3 minus 0 whole square. अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 minus 4 कितना होता है बेटा जी, 2 square, again minus 3 का square, तो minus 3 का square 9, so we are getting the similar pair 4 and 9, so this is 4 plus 9, so again it is root 13 units. नेक्स्ट हम लोग लेंगे डिस्टेंस AC. अब डिस्टेंस AC के लिए हमारा एक पॉइंट हो जाएगा A एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा C. तो आप डिस्टेंस AC निकालने के लिए, अब इफ यू वांट यू कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C अगेन, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन जस्ट डू इट डायरेक्टली. अब मैंने C पॉइंट बाद में लिया है ना, तो C का एब्सिसा मैं पहले लूंगी. 6 minus 2 होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है हमारे पास, -3, और ऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है 3, तो y2 माइनस y1 इज -3 होल स्क्वायर. अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 6 minus 2 हमारे पास कितना होता है 4 एंड इट्स स्क्वायर, 6 3 and 3 with negative sign, तो दोनों का साइन नेगेटिव है, both will add and sum will remain minus only, तो -6 का होल स्क्वायर. Now, what is the 4 square? It is 16. And what is -6 whole square? So, negative का square positive, 6 का square 36. So, this is 36 plus 16. So, it is 52 units. अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहे हैं, इनसे क्या आपको पता चल रहा है whether the sum of any two sides is equal to the third side? आई डोंट थिंक अभी हमें पता चल पाएगा. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे रूट में दिए हुए नंबर, हम ये चेक करेंगे whether they can be further simplified. So root 13 both are prime number under the root, we can't do anything in these two cases. But root 52, तो root 52 क्या होता है 13 4. ठीक है, इसके लिए आपको टेबल आने जरूरी है, टेबल याद कर लेना. अब ये देखिए रूट 4 एंड रूट 13, तो रूट 4 कितना होता है हमारा 2 रूट 13. अभी कुछ कुछ बच्चों को स्माइल आना स्टार्ट हो गया है जो इरेशनल नंबर के एडिशन में कंफर्टेबल है. यस मेरा बेटा, आप ध्यान से देखिए ए बी प्लस बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट 13 प्लस रूट 13, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट 13. लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, एंड विद इन द रूट सेम नंबर हमारा आता है, एंड दिस इज इक्वल टू AC. तो देखिए सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे हम लोगों का मान लीजिए ये वाला पॉइंट कितना है A, यहाँ पे हमारा पॉइंट है B, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है रूट 13. फिर B और C, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है रूट 13. अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, टोटल डिस्टेंस इज 13 unit, 2 root 13 units. So yes, these 3 points are collinear. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा हम उसमें क्या लिखेंगे, yes, A, B and C are collinear. A, B and C are collinear points. Collinear points, I hope अब आपको अच्छे से पता चल गया है. The points which lie, 3 or more points which lie on the same straight line. So अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टोन पे क्वेश्चन लेंगे, आप उसमें खुद से ट्राई करेंगे. ठीक है, अब जिस जिस बच्चे को बाय चांस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, खुद से ये क्वेश्चन करेंगे. जस्ट पॉज माई वीडियो, try it by yourself and then check if you got the same answer or not. अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं भी होगा तो still you can try it again. Now I'm given with 3 points. It is asking do the points 2 comma -2, -3 8 and -1 comma 4 form a triangle. Again the similar question, if 3 points are not collinear then what will be the pattern, like this now. देखिए ना, ये एक पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट Q हो जाएगा, ये पॉइंट R हो जाएगा. इफ दे आर नॉट कोलिनियर इट मींस दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल. तो मुझे क्या चेक करना है, आई जस्ट हैव टू चेक कोलिनियरिटी. ठीक, अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं तीनों डिस्टेंसेस निकालूंगी, तीनों पॉइंट्स जो हमारे को दिए हुए हैं उनके हिसाब से. फॉर एग्जांपल मुझे P दिया हुआ है 2 -2, Q हमें गिवन है -3 8 एंड R हमें गिवन है -1 4. हम क्या करेंगे, PQ फर्स्ट डिस्टेंस, देन QR सेकंड डिस्टेंस एंड देन PR थर्ड डिस्टेंस. तो तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे और तीनों डिस्टेंसेस में फिर चेक करेंगे इफ सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड वन. Just in case the distance is not same, then it will be a triangle. और अगर triangle बन रही है, we just have to justify the type as well. Clear?
फर्स्ट यस पी क्यू। अब पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इट्स बेटर टू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं। 3 डिस्टेंसेस निकालने के लिए अगर मुझे एक बार फॉर्मूला लिखना भी पड़ रहा है, इट्स क्वाइट ओके यार। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। क्लियर। अब हम निकाल रहे हैं पी क्यू। मैं ऊपर से ही पॉइंट पिक कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन में देख के अपने पॉइंट खुद से लिखे थे। अगर आप पॉइंट खुद से लिखोगे तो आप उस पर थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेट करोगे। अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखोगे, डायरेक्ट पीक्यू निकालने में बिलीव करोगे, समटाइम्स यू नो यू कैन टेक डिफरेंट पॉइंट्स और यू कैन जस्ट मिस द साइन। सो इट वुड बी बेटर फर्स्टली राइट ऑल द 3 पॉइंट्स बाय योरसेल्फ। नाउ लुक पीक्यू के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो देखिए बेटा जी, मैंने q पॉइंट बाद में लिया है, तो q का एब्सिसा विच इज -3। एब्सिसा ऑफ q को मैं पहले लेने वाली हूँ -3 एंड देन माइनस x1, तो एब्सिसा ऑफ p -2, तो -3 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस ऑफ -2, 8 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस ऑफ -2 जो है, मेरे को ये ऐसे ही लिखना होगा। ट्राई नॉट टू राइट डायरेक्टली द पॉजिटिव साइन। अगर आप थोड़े थोड़े स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप्स में ये चीजें करते हो तो ओवरऑल फिर आप मिस्टेक कर जाते हो। अब देखिए -2 -3 दोनों का सम कितना होता है, दोनों नेगेटिव नंबर है तो दे विल ऐड एंड साइन विल नेगेटिव ओनली। प्लस 8 माइनस ऑफ -2 विल बिकम +2, negative of negative will be plus, so this is 5 का स्क्वायर 25 and 8 plus 2 हमारे पास कितना होता है 10, so 10 का स्क्वायर 100, so this is root 125। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसी स्टेप पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 125 क्या होता है, 25 बोलो, 5 into 5 25, 25 5 125। तो इसमें आप अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आई थिंक इट वुड बी मच मच इजियर फॉर यू टू जस्ट टेक दी, क्योंकि 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यू कैन टेक वन ऑफ द 5 आउटसाइड, सो 5 रूट 5 यूनिट। इसके बाद आप निकालेंगे क्यू आर, द सेकेंड डिस्टेंस। देखिए क्यू आर, अब क्यू आर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एब्सिसा ऑफ आर माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, सो दिस इज -1 माइनस ऑफ -3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बट मैं आपको बोल रही हूँ आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, उससे आपका, चलिए ठीक है मैं भी आपको फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप सीधा लिखेंगे ना, मुझे अभी के लिए जो डर है सिर्फ इतना सा है कि आप गलती कर देंगे। सो देखिए फिर से मैं लिख रही हूँ -1 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, चलेगा, प्लस आर, आर का ऑर्डिनेट माइनस क्यू का ऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। so this is again we are writing -1 -3 -4 होल स्क्वायर, -1 मैंने नेगेटिव साइन को गड़बड़ कर दिया, देखा मैं आपको यही बोल रही थी ना, जो गलती आपसे हो सकती है जो कि मैंने भी की है, तो यहाँ पे हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। this is -1 and x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू मेरी है -3। क्लियर। अब देखिए अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे तो आपको ऐसा फील होगा मैंने तो सारा क्वेश्चन ठीक किया है बट आंसर तो गलत ही आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम इसको फिर से ठीक करके लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बताइए, -1 माइनस ऑफ -3 +4 +3 and this is perfect square plus 4 minus 8 it is -4 whole square। तो देखो मेरे को 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा क्योंकि मैंने एक एरर कर दिया था, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ये स्टेप अभी स्किप मत करो। once you will be comfortable and while you are doing revision then it's okay, but when you are doing the paper then don't skip steps। तो -1 plus 3 will be 2 square plus -4 का whole square। तो देखिए -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 4 20। ठीक है, अब 20 विद इन दी रूट, अगर मैं 20 को भी सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 5 20, तो 4 into 5, और अगर इसमें से 4 मैं देखूंगी तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज 2 रूट 5 यूनिट्स। हमारे दो डिस्टेंसेस ऑलरेडी निकल चुके हैं। फर्स्ट डिस्टेंस जो हमारा आ रहा था दिस इज 5 रूट 5 यूनिट एंड सेकेंड डिस्टेंस जो हमारा आ रहा है दिस इज 2 रूट 5 यूनिट्स। अब हम लोगों को थर्ड डिस्टेंस निकालना है, थर्ड डिस्टेंस मेरा है पी आर। अगेन जस्ट रिवाइजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मेरे दो पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो है P एंड R।
आर के कोऑर्डिनेट्स को हम पहले लिखेंगे तो -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, अभी हमने एरर की थी, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो दिस इज -1 -2 कितना होता है बेटा जी, -3 का स्क्वायर। देन माइनस यहाँ पे हमारा 4 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 4 + 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36। कभी कभी एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये पूछते हैं मैम यहाँ पे 4 + 2 होल स्क्वायर है, कैन आई यूज आइडेंटिटी 1? नो नो नो, अ बिग नो, बिग नो। क्यों बोल रही हूँ मैं बिग नो? बेटा 4 + 2 आपका 6 बन रहा है, व्हाई विल यू यूज आइडेंटिटी 1? आइडेंटिटी 1 हमारी हेल्प करने के लिए, हमारा काम बढ़ाने के लिए नहीं है। So this is root 45, 9 + 36, root 45. Again, it can be written as 9, 5s are 45 and 9 is a perfect square. तो ये this is called simplification step. अगर आपका जो नंबर बन रहा है विद इन दी रूट उसमें से कुछ परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है, तो वी ट्राई टू मेक इन दैट फैक्टर्स। सो 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 3 √5। बिल्कुल सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे चूज किया गया है सो दैट यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा पी क्यू जो डिस्टेंस है दिस इज 5 √5, इट इज इक्वल टू QR प्लस PR। चेक करो चेक करो चेक करो, पी क्यू मेरा है 5 √5, वी आर जस्ट चेकिंग इट इज QR 2 √5 एंड देन PR 3 √5, ऐड कर दो ना दोनों को, तो 5 √5 इज इक्वल टू 5 √5। यस, सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डू द पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल, सो आवर आंसर इज नो। P, Q and R do not form any triangle. Do not form any triangle. क्यों नहीं triangle बना रहे हैं? Because they are collinear points. क्योंकि sum of two sides is equal to the third side. Sum of two distances is equal to the third distance. They will not form a triangle. Clear है? With doubt? Okay, you can give it a try. आपके पास कुछ questions और भी है NCERT में, अगर आपको और questions चाहिए आप मुझे भी कह सकते हो, ठीक है? So at least practice 5 to 10 questions of each type. Only then you will be comfortable while performing that topic. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हैं। अब हमारे को फर्स्ट हमारा टॉपिक जो था दैट वाज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला कोलिनियरिटी। अब हम सेकंड फॉर्मेट पे मूव कर रहे हैं, वी आर अगेन गिवन विद 3 पॉइंट्स, वी हैव टू चेक वेदर दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। अभी हमने जब लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने ये देखा था वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें ये फिर से चेक करना है कि वेदर दीज 3 पॉइंट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। तो चलिए यहाँ पे इन पॉइंट्स का नाम है, एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट रिया। सो दिस इज 3 2, let's say this is R, then I -2 -3 and then again A, it is 2 3 real. Okay, I have met with at least 4 5 Ria, but everybody has different spelling, so this is Ria, one of my students. अब अगर आपको ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं आप एक काम और भी कर सकते थे, आप इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते थे और उसके ऊपर भी पॉइंट्स को लिख सकते थे। अदरवाइज जो नॉर्मल हमारा मेथड चल रहा है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है आर आई निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या बोलूंगी हाँ जी, राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी कुछ बच्चे बोल रहे मैम बोर हो गए हैं, हर बार हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाती जा रही हो। अरे मेरा बेटा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लर्न होगा तभी तो पता चलेगा आता है कि नहीं आता। पेपर मैंने लिखना है तुमने लिखना है। चले जी आर आई रिया का एक आर्म निकालते हैं आर आई। So this is x2 minus x1. So I am taking I point later. So I के coordinates को मैं x2 and y2 assume करूंगी. So -2 -3 whole square. And you also know it will not make any difference. हम r और i में से किसके points को x1 x2 लेते हैं और किस points को y1 y2 लेते हैं। Clear? So उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो -2 -3 होल स्क्वायर, फिर अगेन बीच में प्लस साइन है y2 y1, तो -3 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए, -3 -2 कितना होता है बेटू -5 होल स्क्वायर एंड -2 -3 फिर से कितना होता है -5। यार बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं, बच्चे भी बोर हो गए हैं। चलो जी चलो आगे बढ़ो 25 50 होता है √50। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इसको कन्वर्ट करें, हाँ हाँ जरूर कन्वर्ट करो यार, बहुत जरूरी है इसको कन्वर्ट करना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप गलती कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है आई ए। ओके, सो आई ए में मैं क्या लिखूंगी, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ए अल्फाबेट। सो दिस इज 2
minus of minus 2 whole square plus 3 minus of minus 3 whole square. I am just taking the abscissa ordinate of I and A accordingly. So A के coordinate जो है 2 minus of minus 2 फिर 3 minus of minus 3. So it will become 2 plus 2 whole square and this is 3 plus 3 whole square. So 2 plus 2 हमारा क्या होता है 4 का square. 3 plus 3 कितना होता है 9 square. Sorry 6 square. Oops. Sorry 3 plus 3 6 होता है 9 नहीं होता. 3 into 3 9 होता है जिसकी कि मुझे जरूरत नहीं है. So this is 4 4s are 16 6 6 are 36 and this is root 52. हाँ जी मुझे पता है आपकी स्माइल्स का रीजन क्या है. अरे यार टीचर भी एरर कर सकता है. इट्स ओके थोड़ा तो एंजॉय करने दो हमें भी. हर वक्त परफेक्शन. हाँ जी नेक्स्ट हमारा है आर ए के लिए 2 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 होल स्क्वायर. देखिए 2 minus 3 होल स्क्वायर फिर y2 minus y1 में क्या लिखेंगे 3 minus 2 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 minus 3 कितना होता है बच्चा -1 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 कितना होता है 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1. सो इट इज 1 plus 1. दिस इज √2 यूनिट्स. अब देखो ये जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं अब मुझे यहाँ पे ये चीज पता चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट क्योंकि इनके जो रूट के डिस्टेंसेस हैं अगर मैं इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लूंगी स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू ऐड. ठीक है तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और नया तरीका सिखा रही हूँ. आप हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप शॉर्टकट सीख जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे √50 है यहाँ पे √52 है यहाँ पे √2 है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पाइथागोरस थ्योरम नाम से एक चीज हमने की थी. ठीक है अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा √52. तो आई ए जो बन रहा है इट्स इसका स्क्वायर इज इट इक्वल टू आर आई स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर. आया. सो दिस इज √52. √52 का स्क्वायर मैं इसको चेक कर रही हूँ वेदर इट इज इक्वल टू √50 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर. तो देखिए √50 का स्क्वायर कितना होता है 50. √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 एंड हियर इज 52. सो बोथ आर इक्वल. सो अगर आपका 3 पॉइंट्स में जो हमने डिस्टेंसेस फाइंड किया है दोस 3 डिस्टेंसेस आर एक्चुअली वेरीफाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इसका मतलब क्या हो गया यस आर I and A form a triangle. And what is the type of triangle? It is a right triangle. Rhea is a right triangle. Sorry, Rhea. अरे यार याद आ रही थी तेरी क्या करूं. So Rhea is a right triangle. और right angle कौन से अल्फाबेट पे है देखो ये हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट साइड है 52 है आई ए. तो लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है दैट इज एंगल आर. सो इट इज अ राइट ट्राइंगल विद एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. मुझे लग रहा है रिया तुम भी ये क्वेश्चन भूल गई होगी. तुम भी एक बार इस क्वेश्चन को देख के रिवाइज कर लेना. ठीक है जरूरत नहीं है बट इट्स ओके. ठीक है सो हमारा फाइनल आंसर अभी जो निकला दिस इज RIA Rhea is a right triangle having angle R equal to 90 degree. तो देखो मेरे दोनों काम खत्म हो गए. फर्स्ट मैंने जो करना था कि इज इट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल. तो दोनों की पार्ट्स मैंने एक ही साथ सॉल्व कर दिए. तो एवरी क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ मेथड यूज करके देखेंगे. हो सकता है वो आपको ज्यादा हेल्प करे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग शो दैट पॉइंट्स AA minus A minus √3a and √3a are the vertices of an equilateral triangle. Also find its area. ठीक है जी. अब मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और मुझे ये चेक करना है whether they are forming triangle first thing and they are forming equilateral triangle and if they are then we have to find the area as well. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे इसने शो दैट लिखा होता है तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. वेरीफाई करो. तो आपको इस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है whether they are forming a triangle or not. आपको ये चेक करना है whether they are forming equilateral triangle or not. ठीक है बेटा. तो दिस इज जस्ट माइनर डिफरेंस तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना. चलिए जी अब नेक्स्ट हमें ट्राइंगल का नाम लेना है. तो ट्राइंगल का नाम मैं क्या लूं. मुझे लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम लेते हैं यार. बहुत हो गया बोरिंग ABC PQR XYZ सारे टाइम वही नाम चलते रहते हैं. कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करें. नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक यू टू गिव मी सम नेम.
चलिए मैं जिस पेन से लिख रही हूँ, दिस ब्लैक स्टाइलस हेल्प्स मी. सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल पेन. सो P A comma A, E minus A and N is root 3A with negative sign as abscissa and root 3A as ordinate. So we are finding if PEN pen is the vertices of equilateral triangle or not. Clear? अब सेम वही चीज है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंसेस एंड देन चेक. एंड डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप, यस बच्चा, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. देखो मैं अगर टीचर होके हर बार फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ, तो इट मींस इट इज नेसेसरी. सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. रिया बोल रही है मैम मैंने आपका क्वेश्चन देखा, मुझे बड़ा मजा आया, जैसे हम पढ़ते थे बिल्कुल सेम वैसा फील आ रहा है, बट पेन चेंज कर लो. तो मैंने इसीलिए पेन का कलर चेंज कर दिया. ठीक है जी. अब देखिए जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे P एंड E. तो E के कोऑर्डिनेट्स को जनरली हम क्या करते हैं, x2 y2 की तरह ट्रीट करते हैं. अभी इस क्वेश्चन में मैं डिफरेंट वे कर लेती हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इनको हम मानते हैं x2 y2 और इधर मानते हैं x1 y1. उससे आपका आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस चेंज. आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वेदर यू राइट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और वेदर यू राइट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग. और फिक्स स्क्वायर हो रहा है ना बेटा, तो दो चीजों का जो डिफरेंस होगा, दो ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट्स इट. सो देखिए जी, a माइनस ऑफ माइनस a. अब ये वाली गलती तो मैं आज वाली वीडियो में तो बिल्कुल नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी बहुत ज्यादा. एक बार ऑलरेडी मैंने किया ना, नेगेटिव नहीं लिखती. तो अब आप लोगों को सिर्फ यही बताना था मुझे कि देखो गलती हो जाती है, ध्यान से कर लो. सो a minus of minus a will be a plus a. दो नेगेटिव साइन will make positive. Again a minus of minus का मतलब plus. So this is 2a plus 2a and within the root. 2a square plus 2a square within the root. So 2a square कितना होता है बच्चा पार्टी, 4a square. फिर से 4a square and it will become 4 plus 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8a square within the root. अगर आप चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर आपको सेम रखना है सेम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या लिखूंगी, अच्छा जी ये भी देख लेते हैं. अगर हम 8 की बात करें तो 8 क्या होता है, 4 टू सा, और a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए. अब आप ध्यान से देखो, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, a इंटू ए में से एक पेयर बाहर परफेक्ट है ना, a स्क्वायर, तो एक a बाहर आ सकता है. तो देखो हमारा 2a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, तो 2√2a इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो √8 जो होता है वो होता है 2√2. a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a. अब नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्टेंस EN. अब जब मैं EN निकालूंगी, फिर से मैं E वाले कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट x1 x2 की तरह एज्यूम कर रही हूँ. आपको मैंने बताया रीजन क्या है. तो देखिए इट इज माइनस a माइनस ऑफ माइनस √3a ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस ऑफ √3a होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको एक स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, उससे आपको इजी हो जाएगा. सो दिस इज माइनस a प्लस √3a होल स्क्वायर. और यहाँ पे मेरा जैसे अब बच्चे बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a माइनस बी का हमें होल स्क्वायर पता है, बट ये तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो बेटा माइनस a माइनस बी अगर होता है तो क्या मैं इसमें से एक नेगेटिव कॉमन नहीं ले जा सकती. अगर मैं इसमें से एक नेगेटिव कॉमन ले जाऊंगी तो इट विल बी a प्लस √3a, और यहाँ पे पूरी ब्रैकेट लगा के लिख दो बाहर स्क्वायर. तो अगर हमारी दोनों टर्म्स नेगेटिव होती है तो उन दोनों टर्म्स में नेगेटिव में से एक नेगेटिव कॉमन बाहर जा रहा है, और दैट विल बिकम एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो आई थिंक इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया होगा. चलिए जी, अब ये थोड़ा सा बड़ा रूट है, हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो है दिस इज आइडेंटिटी 2 माइनस ए प्लस √3a. तो अगर आप चाहो तो इसको √3a माइनस ए भी लिख सकते हो, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. जो आपका नेगेटिव साइन है एक टर्म के साथ एक पॉजिटिव, सो थर्ड सेकंड आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है, तो 2ab वाली टर्म नेगेटिव आएगी. तो दिस इज माइनस a स्क्वायर. अगर आप चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं चाहते तो सीधा भी लिखोगे तो भी मुझे चलेगा. b स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे अगर मैंने ये
मैं इसको आइडेंटिटी 2 से कंपेयर करूंगी तो मैं इसको प्लस ही लिख रही हूँ। अगर मैं इसको आइडेंटिटी 1 से कंपेयर करती तो मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करती, ठीक है ना। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, आंसर दोनों ही केसेस में सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसी के साथ प्लस साइन बीच में है, ये वाला नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुका है। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू √3a। जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल कर देंगे, बाकी चीजों को आप ऐड कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। तो देखिए 2√3a स्क्वायर एंड 2√3a स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। a square plus 3a square will be 4a square, and here again 4a square, तो a 4a square plus 4a square will be 4 plus 4 8a square। तो देखिए ये बिल्कुल सेम आ रहा है, जो मेरा PE आया था EN भी बिल्कुल सेम वही वैल्यू ला रहा है। दिस इज 2√2a यूनिट्स। अब मुझे चेक करना है द थर्ड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस के लिए हम डिफरेंट कर दें, चेंज कलर, क्योंकि अगर आप सेम कलर लेते हैं तो कभी कभी आप गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ से डिफरेंट डिस्टेंस स्टार्ट किया था। तो अब मुझे निकालना है पीएन डिस्टेंस निकालना है। पीएन डिस्टेंस के लिए मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे रूट लेंगे, a माइनस ऑफ माइनस √3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस √3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a होल स्क्वायर। तो देखिए दिस एंड दिस आर बोथ सेम, यहाँ पे मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस √3a होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा a माइनस √3a होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम, लाइक a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। तो आपका जो लाइक वाली टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन दे विल कैंसिल ईच अदर दीज टू, एंड आई विल बी लेफ्ट विद √8a स्क्वायर विद इन द रूट। सो दिस इज 2√2a यूनिट्स। अब हमारा यहाँ पे PE इज इक्वल टू EN इज इक्वल टू PN आ रहा है, तो तीनों डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं, इट मींस दिस इज अ राइट ट्रायंगल। बट अब मुझे क्या निकालना है इसमें, एरिया। अगर एरिया भी निकालना है तो किस किस बच्चे को एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद है, जल्दी जल्दी बोलो। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a²। अगर आपको नहीं आता तो याद कर लो, √3/4a²। ये जो a है आपका, दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इन दिस केस द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√2। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √3/4a² की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 8a²। 8a², क्योंकि देखो रूट के अंदर 8a² था, इसका स्क्वायर रूट लिया था तो 2√2a आया था, तो 2√2a का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो 8a²। अब यहाँ पे से आप 4 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2√3a²। तो देखिए आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कोलिनियरिटी, फिर हमने ट्राइंगल के लिए चेक किया ट्राइंगल है कि नहीं, अब ट्राइंगल भी है और उसका एरिया भी फाइंड किया। तो देखो हम स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी हमारे पिटारे में क्या है। ये क्वाड्रिलेटरल पे मूव कर चुकी है। इट इज आस्किंग विद द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीस 4 पॉइंट्स। अब क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। तो वी आर गिवन विद P -2 -1 Q 1 0 and then R 4 3 and then S 1 2। मैं फिर से एक बार पॉइंट्स मैच कर देती हूँ, P -2 -1 Q 1 0 R 4 3 and S 1 2। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 पॉइंट्स को अगर मैं इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल बनेगी कि नहीं बनेगी, और अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगी तो मुझे टाइप भी तो फाइंड करनी है ना। तो P Q R S, अगर मुझे 4 वर्टिसेस दिए हैं तो आई कैन फाइंड एटलीस्ट 6 डिस्टेंसेस। देखो P Q Q R R S P S एंड Q S P R, तो 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। तो कभी कभी हमारा 4 साइड से भी काम चल सकता है, और 4 साइड्स के बाद फिर हमें डायगोनल्स जो निकालने होते हैं, दैट विल एक्चुअली हेल्प अस टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए जी, पहले हमें निकालना है पी क्यू। अब हर बार देखो बेटा, एक बार तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी। हाँ जी बोलिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
तो बिटू इस वाले जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव होता है मेनली क्या होता है कि लेक्चर जब टीचर दे रहा है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तब आपको उस वीडियो का फायदा है। अगर आपको फॉर्मूला भी लर्न नहीं हुआ तो हमने क्या अचीव किया ना, कुछ भी नहीं। तो देखिए 1 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों के दो नेगेटिव साइन है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। So this will be 1 plus 2 होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे दो बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमने नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाया है, तो यू शुड बी bit careful. And then again 0 minus of minus will be plus 1. So this is 3 square plus 1 square. 3 square हमारा कितना होता है 9 and 1 square हमारा कितना होता है 1. So 9 plus 1 will become 10. So root 10 units. तो फर्स्ट डिस्टेंस मेरे पास आ गया रूट 10 यूनिट्स। अब हमें नेक्स्ट लेना है क्यू आर। क्यू आर के लिए फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 1 3 स्क्वायर एंड 3 माइनस 0 3। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 9 कितना होता है 18 एंड 18 को अगर आप रूट 18 ही लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोलिनियरिटी अभी के लिए चेक नहीं करनी, जब मुझे करनी होगी तब हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे आर एस। जब हमें कोलिनियरिटी चेक करनी होती है तब हम लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हम उसको सिंप्लीफाइड लिखे ही लिखें। अब देखिए यहाँ पे आर एस जब मैं लूंगी तो मैं लिखूंगी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 4 कितना होता है बचा -3 एंड 2 माइनस 3 -1। सो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 एंड 1 का -1 का स्क्वायर 1। सो दिस इज रूट 10। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पी क्यू और आर एस सेम आ रहा है, तो पी क्यू और आर एस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कोई कुछ बनने वाला है। अब लास्ट हम लेंगे पेयर जो साइड्स के लिए लेंगे, दिस इज पी एस। जो हम फोर्थ पेयर लेंगे पॉइंट्स का साइड्स की वेरिफिकेशन के लिए पी एस। सो पी एस जब मैं लूंगी तो इट विल बी 1 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस ऑफ -2 कितना होता है +2, तो 1 + 2 and here 2 + 1. So this is 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 9 में 9 को अगर मैं ऐड कर दूंगी दिस इज 18 विद इन दी रूट। ओके ओके, सो वी आर हैविंग टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अगर टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है तो इट इज अ, अभी नहीं पता यार, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ रेक्टेंगल। सो वी विल बी एबल टू जस्टिफाई आफ्टर फाइंडिंग द डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस बन रही है, इट कैन बी अ रेक्टेंगल एंड इट कैन आल्सो बी अ पैरेललोग्राम। तो अब मुझे चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी पी आर। सो पी आर बिल्कुल सेम डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है मेरे बेटा। आप पी और आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो पी और आर के लिए मेरा हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर। सो 4 + 2, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, 4 + 2 हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर एंड 3 माइनस ऑफ -1 + 1, तो 3 + 1 4 स्क्वायर। So this is 6 6 are 36, 4 4 are 16, root 52 units. अब सेकंड डायगोनल, अगर जस्ट इन केस आपका सेकंड डायगोनल क्यू एस पी आर टी इक्वल आता है तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इट विल बिकम पैरेललोग्राम। सो इट इज 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। सो 1 - 1 0, 2 - 0 2। सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट अगेन 2। तो देखिए आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, सारी साइड्स इक्वल एंड डायगोनल, यहाँ पे आप डायगोनल मेंशन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, हेंस इट इज अ पैरेलल। अब जिस बच्चे को फुल मार्क्स चाहिए तो वो बच्चा ऐसे फॉलो कर ले, और अगर किसी बच्चे को लगता है यस मैम आई कैन अफोर्ड टू कट मार्क्स, तो ठीक है आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो। बट अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है उस क्वेश्चन में मार्क्स कटवाना कंप्लीटली नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बात अलग है, अब क्वेश्चन आता है फिर भी नंबर कटते हैं तो दिस इज नॉट फेयर यार।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए क्या आ रहा है, हो सकता है कुछ अच्छा सा मिल जाए। ओह माय गॉड, दे आर आस्किंग फॉर हेल्प। Check the type of quadrilateral. Again, they are asking for help. HELP. अब मुझे फिर से वही सेम वैसा ही एक फिगर बना देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों का जो बन रहा था दैट वाज पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हमारा पैरेललोग्राम बनेगा या फिर कुछ और। तो HELP. ओके, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे अरे यार लिख दे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। x2 माइनस x1। आप ये भी तो सोचो ना, पेपर में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का 2 आ जाएंगे, तो फिर लिखना बनता है यार। अभी एक ही क्वेश्चन, हम एक ही वीडियो में 5-7 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है हम बार बार क्यों लिखें। नंबर पूरे चाहिए ना, लिख लो चुप करके। आई एम अ टीचर ना, सुनो टीचर को। सो HE 3 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर plus 1 minus 5 whole square. So 3 plus 3, देखो 3 minus of -3, तो 3 plus 3 6 का स्क्वायर, एंड देन 1 minus 5 minus 4 का स्क्वायर। ऐसा ऐसा पेयर हम लोगों ने किया था ना, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ बेटा जी, हम 2-3 क्वेश्चन में सेम इसी तरह का कोऑर्डिनेशन यूज कर चुके हैं। 36 16 52 यूनिट्स। 36 प्लस 16 मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है, इतना तो मुझे अब याद हो गया है। नेक्स्ट हमारा है EL, one more side of the quadrilateral EL. So it is 0 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square. देखो मैं ऊपर से पॉइंट देख रही हूँ और लिख रही हूँ, बट आपको मैंने रिकमेंड किया है यू शुड राइट द पॉइंट्स अगेन। क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट पे तो लिखना ही पड़ता है ना बार बार। सो -3 का स्क्वायर होता है 9, एंड 2 3 minus 1 2 का स्क्वायर होता है 4। दिस इज रूट 9 plus 4 30। 9 plus 4 30। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पे HEELLP। नेक्स्ट मुझे निकालना है LP। LP के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और -7 का स्क्वायर भी 49। सो दिस इज रूट 50। ठीक है, अभी तक मेरी तीनों साइड्स डिफरेंट साइड्स आ रही हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अभी मैं पहले एक बार HP निकालती हूँ, फिर एक बड़ा फनी सा काम बताती हूँ आपको। ठीक है, जिसके पीछे मैंने काफी बार बच्चों के नंबर काटे हुए हैं। तो पहले हम HP निकालते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दैट इंसिडेंट। और आप लोग सच में, आप लोगों को भी हंसी आएगी क्योंकि सेम एरर आप लोग भी करते हो। आपको लगेगा अरे यार मैम आपने पकड़ लिया हमें ना। So this is -1 plus 3 whole square plus -4 -5 -9 whole square. So this is 3 minus 1 2, 2 square 4, -9 square is +81. So this is 85. ठीक है, दिस मच यूनिट। अब यहाँ पे जब चारों डिस्टेंसेस आप निकालते हैं, कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू नो दे जस्ट राइट quadrilateral doesn't form. How do you know quadrilateral doesn't form? अगर आपके एक ऐसी quadrilateral भी तो पॉसिबल है जहाँ पे सारी साइड्स अनइक्वल हो सकती हैं, फिर तो यू शुड हैव अ स्पेसिफिक रीजन। ऐसे नहीं होता किसी को भी कभी भी आप रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, रीजन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, HL। YHL बिकॉज दिस इज द डायगोनल। मैंने आपको अभी बताया था ना, पहले हम सारी साइड्स निकालेंगे फिर उसके बाद डायगोनल्स निकालेंगे। तो HL बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सो दिस इज 0 माइनस ऑफ माइनस +3 हो जाएगा, तो दिस इज 3 स्क्वायर 9, एंड 2 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर +4, सो रूट 30। अभी जब मैंने HL निकाला तो मुझे एक पॉइंट स्ट्राइक किया है, जो कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता अभी स्ट्राइक कर चुका है कि नहीं। आई हैव डन द सिमिलर क्वेश्चन एज वेल, सो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। देखिए रूट 52 क्या होता है, 13 फोर्सा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी तो आई कैन राइट इट एज 2 रूट 13। अब हाँ हाँ हंसी आई ना। हाँ मेरा बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोगों का ये जो EL है और ये जो HL है, ये दोनों मिलकर आपका HE बना रहे हैं। √13 प्लस √13 एंड इक्वल टू 2 √13। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HELR कोलिनियर। अब देखो 4 में से 3 पॉइंट्स अगर हमारे कोलिनियर हैं,
so they will not form any quadrilateral. So हमारा final answer हो जाएगा no quadrilateral is formed. No quadrilateral is formed. ठीक है, तो अब ध्यान रखना है एग्जामिनर का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है उसकी एप्लीकेशन भी आती है और फिर भी अगर हम नंबर कटवाएंगे, दैट इज नॉट फेयर मैन. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन C 2 comma minus 1, R 3 comma 4, O minus 2 3 and T minus 3 minus 2 be the 4 points in a plane. Show that PQRS is a rhombus but not a square. अरे वाह, अरे वाह. एंड द एरिया ऑफ रोम्बस एज वेल. तो देखो हमें हर बार हर स्टेप ये कुछ नया नया सिखाता जा रहा है. तो देखिए सी जो है इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 2 minus 1, 2 minus 1 and R is 3 comma 4 and O minus 2 and 3 and P minus 3 minus 2. ठीक है बच्चा, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सी आर. फर्स्ट साइड निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला. आपकी बार में 2 बार वर्बल बोलूंगी, ठीक है. मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर विद इन द रूट. ठीक, अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर विद इन द रूट. तो अभी क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो मैं फॉर्मूला स्किप कर रही हूँ, आपको लिखना है. तो टीचर होने का थोड़ा एडवांटेज लेने दो भाई. x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3 minus 2 हमारा कितना होता है बच्चा, 1 प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5. तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस 25. अगर आपने ध्यान दिया हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने स्टेप थोड़े कम 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 करने स्टार्ट कर दिए हैं. तो इससे क्या पता चल रहा है, वी आर एक्चुअली हैविंग ग्रास्प ऑफ द टॉपिक. तो नेक्स्ट पॉइंट हम निकालते हैं आर ओ. आर ओ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बोलो, दिस इज minus 2 minus 3 whole square plus 3 minus 4 whole square. minus 2 minus 3 को दोनों को ऐड कर दो बच्चा, पार्टी minus 5 बन जाता है. 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो minus 1 बन जाता है. 5 का स्क्वायर 25 होता है और वो अगर नेगेटिव 5 होता है तो भी स्क्वायर 25 ही होता है. माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 कहा जाता है, रूट 26. कुछ बच्चे बोले मैम यूनिट यूनिट यूनिट. हाँ बेटा यूनिट 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 तो लिख ही दो ना. बिना यूनिट लिखे वैसे भी देखो ना अजीब सा लग रहा है, मजा सा नहीं आ रहा. अब हम नेक्स्ट क्या निकालने वाले हैं, सी आर आर ओ ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी निकालो. ओपी निकालने के लिए हम कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स ले रहे हैं. तो -3 माइनस ऑफ -2 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, -2 -3 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. -3 माइनस ऑफ -2 विल बी +2 होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर. अब देखिए क्या बन रहा है, -3 + 2 विल बी 1 विद नेगेटिव साइन एंड -5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा ना. तो 25 -1 का स्क्वायर +1 होता है, 25 में 1 को ऐड कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड 26. हाँ बेटा मुझे पता है कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती तो फिर से मैं बोल देती हूँ माइनस रूट 26. अब हम लोग पहुंचते हैं फोर्थ डिस्टेंस निकालने पे विच इज सीपी. सीपी सीपी चलना है सीपी. हाँ जी, दिल्ली में एक बहुत अच्छी सी लोकेशन है सीपी. बहुत बहुत ज्यादा मस्त मजा आता है, चलते हैं कभी. सो सीपी निकालने के लिए हम करेंगे -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर. आई होप मैंने कोई गलती ना की हो. अब -2 - 3 मतलब -5 ही होता है एंड -2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1. तो -2 + 1 विल बी -1 होल स्क्वायर. तो सिमिलर पेयर हर एक में बन रहे हैं. सो दिस इज 25 + 1, दिस इज 26. अरे बाबा इसने तो हमें बोला ही था रोम्बस बन रही है, लेकिन इसने बोला कंफर्म करो स्क्वायर नहीं बन रही. अब वो कैसे पता चलेगा, अगेन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वी विल फाइंड द डायगोनल्स. तो डायगोनल्स के लिए हमारा ये जो सी पॉइंट है इसको ओ के साथ सी ओ निकाल देते हैं हम. डायगोनल का मतलब होता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस. तो सी आर मेरा हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर. ओके जी. अब यहाँ पे हमारा देखिए ये क्या बनेगा, -2 -4 एंड 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर. सो 4 का स्क्वायर 16 + 16 32. और 32 को मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है ऐसे ही छोड़ दो यार, मुझे तो बस डायगोनल देखना है इक्वल है या नहीं है.
इससे ज्यादा मुझे करना भी क्या है ना। अब नेक्स्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस में हम आरपी को ले लेते हैं। आरपी, आइए आरपी साहब आप भी आ जाइए, देखते हैं आप कितना डिस्टेंस लेके बैठे हैं। -3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। आरपी साहब ने लिया है -3 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। सो आरपी साहब की डिस्टेंस कितनी हो गई है बच्चा? -3 -6 का स्क्वायर होता है 36। फिर -2 -4 -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सो 36 में 36 को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा 72। ये डिस्टेंसेस कैसे बन गए हमारे, देखना। 32 √76 दोनों डायगोनल अनइक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, and diagonals are not equal. Hence, hence, rhombus. RHOMBUS. This is called a rhombus. अब मुझे क्या बोला है? rhombus है, ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया था, हमें तो वेरीफाई करना था ना, तो हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? हम ऐसे ही बिना बात के खुश हुए जा रहे हैं। अभी हमें एरिया निकालना बचा है, कहीं खुशी खुशी में एरिया निकालना भूल जाओ। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला तो मैम हमें आता नहीं आता तो लर्न करो ना। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है हाफ d1 d2, ठीक है, वेयर d1 एंड d2 आर दी डायगोनल्स। अब यहाँ पे √32 है, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, मेरा आंसर इजीली निकलेगा, क्योंकि 32 जो होता है वो होता है 16 2s, और इसको हम लिख सकते हैं 4√2। सिमिलरली 72 जो होता है 36 2s, तो 6√2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें अब वैल्यू पुट करिए। हाफ d1 की जगह मैं डालूंगी 4√2, d2 की जगह डालूंगी 6√2। √2 और √2 मिलकर 2 होता है, तो मैं तो ना ऐसे काटना प्रेफर करूंगी, बाकी आप लोगों को जैसे भी काटना है आप काट सकते हो। अब मेरे पास बनेगा 6 4 24। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे छोड़ूंगी ना, हर बार यूनिट लिख रही हूँ तो एरिया में तो स्क्वायर यूनिट लिखूंगी ना बेटा। तो 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो मेरे दो आंसर थे, एक रॉम्बस आंसर था, एक 24 स्क्वायर यूनिट। मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया, मेरे को तो मिल गए फुल मार्क्स। अब आप देखो आपको फुल लेने हैं या कितने लेने हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।